चेन्नई में था, हमको कुछ आइडिया नहीं है दिल्ली में कैसा होगा जामिया आरसीए. When I saw your video, I could see that okay, this is their libraries, their facilities है. Toppers का video also I in your channel I saw. मेरा parents sir, because they have always been supported me in whatever I do. I'm a single only child sir. ओह, राजा अभी तक मिले नहीं है अपने मम्मी पापा से. 2 दिन में जा रहा. और वन मोर थिंग, सीएम है ना तमिलनाडु के स्टालिन, ही हैज इनवाइटेड हिम अलोंग विद एआईआर टू, इनको ऑनर किया जाएगा. इस बार आपने ऐसी तैयारी की, मेंस में इतने अच्छे मार्क्स आए और एक टर्न अराउंड जो पूरी तस्वीर बदल दी. Try to do as many mock tests as possible so that you get to know how to solve the paper in how many कितना round में solve करना पड़ेगा. Lot of attention to PYQs, do a lot of PYQs, understand the language that is being used by UPSC in the PYQ, understand the areas in which UPSC is asking. Polity में fundamental rights is non-negotiable, it should be done. Similarly, identify areas, CAPF or CDF, do their PYQs also for the past 2-3 years. Just revise all the mistakes that you have done in the mock tests. Do one previous year question paper per day. Polity, geography, economy should be and must be mastered. V2 Media is a gateway to all the schemes that are available and all the RCAs that are there to get information about. When I was preparing for the RCA exam, whenever I look for PYQs, I couldn't find them. But अभी one place में sir has. उस बुक की सेकंड एडिशन भी इस बार आ रही है, 2-3 दिन में निकलेगी. अलॉन्ग विद इस बार हम मटेरियल भी दे रहे हैं, जीएस के भी मटेरियल दे रहे हैं. सो दिस बुक इज गोइंग टू बी अराउंड 600 पेजेस. दिल से दुआएं दोगे अगर इस बुक को आप पढ़ोगे. किताब जल्द आने वाली. एनर्जी है बच्चों में. हमें ऐसा क्यों लग रहा कि सच में मेरा भाई आज टॉपर बना है. दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं ए राजा मोहिउद्दीन. ही गॉट 7th रैंक इन यूपीएससी सीएसई 2025. सर ऑलरेडी एमबीबीएस हैं और इनकी जर्नी यूपीएससी की है वो बहुत ही सॉलिड रही है. और सबसे बड़ी बात ये है कि राजा हमारे जामिया आरसीए गाइडेंस प्रोग्राम के बहुत बड़े एक पार्ट रहे हैं. ये स्टूडेंट भी थे और इन्होंने मेंटोर भी किया है बच्चों को. तो इनकी कोऑपरेशन बच्चों के लिए बहुत ही स्प्लेंडेड है और बच्चे इनको दिल से दुआ देते हैं इनकी कामयाबी के लिए. एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले राजा, वैसे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर ही चुका हूँ आपको फिर से वंस अगेन फॉर योर स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस. Thank you so much for your congratulations. Thanks. Sir, during my internship days, I thought about giving the civil services, sir. Because at that time I was able to, during the pandemic, that too, I was able to closely watch certain IAS officers in Chidambaram working very hard. So I got the inspiration from them in managing these public crises, is what important role civil servants they play. So I saw that. So that was a turning point, I might say, in my career, where I thought, okay, instead of doing post graduation, मैं यूपीएससी कर सकता हूँ. हाँ सर, मैं पहले फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में चेन्नई में दे दिया. मेरा ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी था. एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज़ बायो के थे तो हाँ यस सर, मेरा मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड. सो मैं सोचता था समथिंग विच इज मार्क्स ऑल्सो आई कैन गेट गुड मार्क्स, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग टू स्टडी. सो आई थॉट एंथ्रोपोलॉजी में आई विल टेक. इट्स अ मिक्स, good mix of science and social science. So anyone having both backgrounds from background of science as well as social science can take this subject. But before taking the subject, थोड़ा सा interest होना चाहिए इस subject में. So that would make it easier for them to study it. पहला मैं foundation course एक कर दिया चेन्नई में. At a private academy I did one foundation course. So इसके बाद मैं first मेरा GS1 2023 में I gave first prelims. उसके बाद I couldn't clear prelims. Then I got to know that Jamia RCA there is there, and then while watching YouTube I got across to our channel V2 Media also, where I could see that you had put out about notification is out and what all patterns will be there, essay will be there, questions MCQs will be there. You had बहुत ज़रा डिटेल में आप बोल दिया. आप ये एक वीडियो भी अंदर about what all was there, I was able to see it. So मैं चेन्नई में था. So हमको कुछ आइडिया नहीं है दिल्ली में कैसा होगा जामिया आरसीए. I didn't have any idea, but when I saw your video I could see that okay, this is their libraries, their facilities है, and toppers का video also I in your channel I saw. So I was like okay, this is a good opportunity, I will write the exam. Thank God I could clear that जामिया RCA exam. So मैं इधर 2023 में I came to Delhi. बिल्कुल. So मैं और मेरे चैनल किसी तरह से भी उन सभी बच्चों को काम आए, ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है. राजा, ये बताइए कि इस बार कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको लग रहा था कि यू विल बी इन द 10?
Sir, I was not expecting to be top 10 because I think no one expects Correct. itna ज़्यादा single digit rank. Everyone expects to get a rank of top 50 or 70 so that they can get into the IAS, sir. But to be honest, I was thinking whether I might be in the list or not. Most of my friends were encouraging me that I will be in the list. So I was hoping for a good, decent rank, and I was thinking, okay, I might improve my rank next year by giving the दूसरा attempt I will give, and मेरा rank I will improve. But then again, inshallah, thank God I got rank 7, so I won't be needing to give the exam again, sir. एज आई रिमेंबर कि आपकी प्री के बाद मेंस नहीं निकली थी इससे पहले, बट इस बार आपने ऐसी तैयारी की, मेंस में इतने अच्छे मार्क्स आए और एक टर्न अराउंड जो पूरी तस्वीर बदल देता है इनकी परफॉर्मेंस का। ऐसा क्या किया था राजा आपने इस बार मेंस में? सर, मैं इस बार मेंस आई डिड व्हाट, इट डजंट मैटर व्हाट आई डिड इस बार मेंस में, बट मैं पहला 2 साल क्या किया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, बिकॉज पिछले 2 साल आई कुडंट क्लियर prelims. So इसके बाद I started mains का preparation and I was writing mains का tests पूरा, particularly 2024 में when I couldn't clear prelims, I wrote the mains as a shadow mains. Oh. So what I did was when actual mains exam center में होता है, मैं एक दिन के बाद यहाँ पे RCA में I will sit in an exam environment and I used to write the same mains paper here. So one day the next day. So in fact I gave the 2024 mains but at my own place here at RCA. So I worked for mains as I have cleared prelims. I thought that I would have cleared prelims and I worked in that direction of mains. So this preparation of 2 years of mains, that helped me a lot in cracking mains in the very first attempt itself, sir. How we can get maximum marks in answer writing? Because you are the expert, आप you have already gone through. Yes, sir. तो जो बच्चे देख रहे हैं वो सीखें कि बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखें, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टू पुट ऑल टुगेदर इन आंसर शीट, ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके जो आपको मिले हैं। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यूपीएससी जर्नी में, बिकॉज प्रीलिम्स सिर्फ आपको एक एंट्री टिकट था मेंस लिखने के लिए. सो मेंस का मार्क विल डिसाइड कौन सा रैंक आपका मिल सकते हैं, कौन सा सर्विस आपका मिल सकते हैं. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इज आंसर राइटिंग. सो विथ रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, पहला चीज़ वी हैव टू नो इज़ द डिमांड अंडरस्टैंड करना. वी हैव टू सी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्किंग समथिंग एल्स, हमारा आंसर और कुछ होगा. हम सोचते थे आई हैव रिटन वेरी गुड, मैं अच्छा लिख दिया, बट मार्क्स नहीं, इट्स नॉट कमिंग. बट देन यू वुड नॉट हैव आंसर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो डिमांड अंडरस्टैंड करने का वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो एक आंसर लिखने का 7 minutes है 10 मार्कर को. सो इन दैट 7 minutes वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द डिमांड एंड राइट आंसर अकॉर्डिंगली. सर कमिंग टू द आंसर राइटिंग, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए 3 पार्ट में, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इसमें बॉडी में पॉइंट्स फॉर्मेट में मैं यूज़ किया, ज़्यादा पॉइंट्स देने का कोशिश किया मैंने. पूरा 10 मार्कर को 12 points आई ट्राई टू गिव, 15 मार्कर को 16-17 points आई गिव टू ट्राई टू गिव. थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ किया मैंने, एक पॉइंट का थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल्स यूज़ करने का मैं कोशिश कर दिया. सो ये एग्जाम्पल्स में मैं ChatGPT में एग्जाम्पल्स थोड़ा आई गॉट इट, फ्रॉम न्यूज़पेपर आई गॉट इट. मेरा लाइफ एग्जाम्पल्स आई वॉज वॉट एवर आई सी अराउंड मी, आई यूज़ दैट एज माई एन एग्जाम्पल. सो थोड़ा यूनिक चीज़ हम एक आंसर में वी हैव टू ब्रिंग इन, सो दैट दूसरा पेपर को कंपेयर करने में हम पेपर थोड़ा सा अलग में वी हैव टू शो इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट. सो दिस शुड बी देयर इन द बैक ऑफ माइंड वाइल राइटिंग आंसर्स. फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर्स शुड नॉट बी दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन. स्टैटिक बहुत अच्छा करना पड़ेगा. प्रीलिम्स के लिए 90% स्टैटिक प्रिपरेशन होना चाहिए, 10% करंट अफेयर्स होना चाहिए. करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स में न्यूज़पेपर, आई विल से रीड न्यूज़पेपर डेली, नॉट इन द सेंस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम, बट जस्ट रीड न्यूज़पेपर टू इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीज general knowledge, increase your lateral knowledge, to get a good thought process also. Because many people ask newspaper mein should we make notes. That doesn't work like that. Just read the newspaper so that your knowledge is there, so that you can use it in prelims if some question comes from the current affairs. But ज़्यादा focus static में होना चाहिए prelims में. Mains में थोड़ा current affairs देखने का, थोड़ा magazines or some current affairs compilations can be used for that. Otherwise newspaper preparation is enough to give
quite a good few unique examples, sir. राजा तीन ऐसी बातें बताइए जो कि बच्चे लैक करते हैं और उनके पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस प्रोसेस में आ जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तीन ऐसी बातें बताइए जो कि बगैर इन तीन चीज़ों के आप यू आर नॉट बी देयर इन एनी लिस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। First would be to understand the demand of the exam itself, totally what they are wanting to know from us. So to understand that, we have to go to the PYQs, previous year questions. So इसमें if you look at all the previous year questions, you will understand what the UPSC wants from you. कौन सा area में UPSC is concentrating, what areas is important for UPSC to ask questions from. So prelims में भी PYQs करना बहुत important है, mains में भी करना बहुत important है. So दोनों में PYQs we have to do. Many people miss that out. That is the first thing. Second thing, consistency होना चाहिए. पेशेंस इतनी है इनमें, एक एमबीबीएस करने के बाद टायर्डनेस हो जाती, थक जाते हैं बच्चे, लेकिन इसके बाद भी एनर्जी अपनी बरकरार रखते हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये सही कहा आपने। Third thing is to I would say the mental health and mental resilience part बहुत ज़्यादा important था, because I can see many people around me getting dejected because they couldn't clear this exam after multiple attempts. So इसके लिए मैं क्या किया, मेरा friends circle बहुत अच्छा था इस बार इस attempt में। मेरा दोस्त सब डॉक्टर्स है तमिलनाडु में, they are there. So मैं phone में I will call them, talk to them for 1 hour, 2 hours, 3 hours. Great. And then we will discuss a lot of things. So this mental support helped me a lot, sir. And in Jamia RCA also I had a friend with me who was preparing along with Navneet Kaur. She got AAR 111 this year. So we both prepared together in this attempt particularly. So I had a companion who I could practice answers with throughout 3 stages में, prelims or mains or interview में. These 2 things helped. And again मेरा parents, sir, because they have always been supported me in whatever I do, whatever I ask them. Whenever I call them and ask them for money, they will send me money, everything. घर में कौन कौन है? ठीक याद दिलाया आपने यार। हाँ, I'm a single only child, sir. Oh. Yes, sir. So मतलब राजा अकेले, मतलब घर वाले को ही लगा अकेला बेटा है, इकलौता बेटा, क्यों उतनी दूर भेजूं पढ़ने के लिए, ऐसा कभी लगा मम्मी पापा को? नहीं, but for the past 10 साल में I have not been in चेन्नई. 5 साल में MBBS थोड़ा सा दूर है, चिदम्बरम थोड़ा दूर है चेन्नई से. Whenever I come back home, सिर्फ 2-3 दिन बस, उसके बाद I will वापस हॉस्टल में आ जाता हूँ. इधर भी दिल्ली में I used to go back 2 years, 3 years I was here in RCA, Jamia RCA. I used to go back just for maybe 2 days, 3 days. That's it. Then I will come back. I have not been with my parents at a stretch for 1 month also. I have not been with them together for past 8-9 years. तो अभी मम्मी पापा खुश हैं, मतलब रिजल्ट के बाद कैसा, मतलब हाउ दे आर फीलिंग? They are very happy. I have not met them yet. अभी तक राजा अभी तक मिले नहीं हैं अपने मम्मी पापा से, मतलब बताओ कैसे बदमाश बच्चे हैं ये। तो आप कब जा रहे हो? मैं 2 दिन में जा रहा हूँ. और वन मोर थिंग, सीएम है ना तमिलनाडु के, स्टालिन सीएम है ना, सो ही हैज़ इनवाइटेड हिम along with AR2, right? हाँ, yes, sir. और And other selected और इनको ऑनर किया जाएगा स्टालिन सर की तरफ से, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। राजा देखो, आप तो जानते हो मुझे, बच्चों को मेंटोर करना, गाइड करना, सिविल सर्विसेज के बताना, स्पेशली जामिया आरसी के लिए, और आप उस प्रोसेस में हमारे साथ रहे हो, और राजा ने हेल्प की है जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम में, एज ए मेंटोर रहे हैं, कई बच्चों की हेल्प की है, और इस हमें जानते हैं इन चीज़ों को लेके। तो मेरा मकसद यही है राजा कि हम किसी तरह से बच्चों के काम आएँ, दिल से ही बात कर रहा हूँ, और मैं कोशिश बरकरार है। मेंटरशिप भी हमारी शुरू हुई है, जो 2027 के बच्चे वो मेंटरशिप में भी आ सकते हैं, और यहाँ पे यूपीएससी सीएससी क्वालिफाइड जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचे वो आपकी मेंटरशिप लेंगे। तो एक मेंटोर की होनी बहुत ज़रूरी है। राजा, मैं इस बात को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अब 2024 मई को प्री है और बच्चे लगे हैं इसमें। हम चाहते हैं कुछ आप अपनी तरफ से अपनी एक्सपीरियंस और आपकी जो अब तक की एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से कुछ ऐसा गाइड करना बच्चों की, ताकि उनको फ़ायदा हो।
अभी the thing is next 3 months are there, I think around 80 days are there. So before May begins, May में exam था, so before May begins, April तक all mock tests should be completed. Try to do as many mock tests as possible so that you get to know how to solve the paper in how many कितना round में solve करना पड़ेगा. All that you have to learn by giving it. कितना questions you have to solve, कितना attempt होना चाहिए. That also you have to be doing it. You will be learning all this from giving a lot of mock tests. So give a lot of mock tests, but stop them before May. So and along with mock tests, give a lot of attention to PYQs. Do a lot of PYQs. Understand the language that is being used by UPSC in the PYQs. Understand the areas in which UPSC is asking from. For example, polity में fundamental rights is non-negotiable. It should be done. So similarly, identify areas, do them really well. Other exams of UPSC, CAPF or CDF, do their PYQs also for the past 2-3 years. And once May starts, just revise all the mistakes that you have done in the mock tests. Start that from May and do one previous year question paper per day. That will be really good. Apart from all this, focus on the static subjects more, and 3 main subjects of polity, geography, economy should be and must be mastered. So focus on these things. And what about CSAT, Raja? CSAT, what I have to say is identify what आपका strength क्या है, आप खुद से identify करो पहले. 3 parts है CSAT में. First, पहला you have your reading comprehension, दूसरा you have your logical reasoning, तीसरा you have the maths. So इस तीनों में आपका कौन सा part में आपका strength है, आपका identify करना पड़ेगा. So इसमें my strengths were in reading comprehension, logical. So I practiced a lot in that. So आपका कौन सा चीज़ में स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार, सो दैट एक्यूरेसी रेट आपका इंप्रूव हो जाएगा वहाँ पे. सो माई RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग वेर गुड, सो आई इंक्रीज माई एक्यूरेसी इन देम. सो दिस हेल्प मी टू क्लियर इवन विदाउट मैथ्स मच ऑफ मैथ्स नॉलेज. आई वुड लुक एट V2 मीडिया. आई हैव सेड दिस टू मेनी पीपल ऑल्सो. मैं लोगों को बोल दिया V2 मीडिया इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द फ्री कोचिंग्स, रेजिडेंशियल कोचिंग्स दैट आर अवेलेबल इन Delhi, around Delhi or anywhere across the country. Because I would like to say this because many people are not aware of the good schemes that are out there. People should be aware. Awareness होना ही चाहिए इस schemes को, so that students can utilize this very much, because all these schemes are there for the utility of the students and they should utilize it. So V2 Media is a gateway to all the schemes that are available and all the RCAs that are there to get information about it. And recently I also saw that you had released a PYQ book. Correct. Of Jamia RCA, because when I was preparing for the RCA exam, whenever I look for PYQs, I couldn't find them. But अभी one place में sir has given. और उस बुक की सेकंड एडिशन भी इस बार आ रही है, 2-3 दिन में निकलेगी, जिसमें कि लास्ट 5 years की PYQ विद आंसर की जामिया RCA, अत्या, AMU सभी करेंगे. अलॉन्ग विद इस बार हम मटेरियल भी दे रहे हैं, GS के भी मटेरियल दे रहे हैं. सो दिस बुक इज़ गोइंग टू बी अराउंड 600 पेजेस. और ये दिल से दुआएं दोगे अगर इस बुक को आप पढ़ोगे. ये किताब जल्द आने वाली है. रजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. आप इसी तरह मुस्कुराते रहो, हंसते रहो. थकान तो नहीं लग रही है? MBBS की पढ़ाई की, नीट के जरिए MBBS किया 5 साल 6 साल, उसके बाद थकान से तो नहीं लग रही है? टायर्डनेस नहीं, आई एम नॉट. एनर्जी है बच्चों में. गॉड ब्लेस यू. दिल से फिर से दुआ है आपके लिए, और मैं बेहद खुश हूँ आपकी इस कामयाबी से. हमें ऐसा क्यों लग रहा कि सच में मेरा भाई आज टॉपर बना है, क्योंकि आपने V2 मीडिया की हेल्प की, एज ए मेंटोर किया है इन्होंने. आपने चीज़ों को करीब से देखा है, चीज़ों को समझा है, और मैंने खुद आपको देखा किस तरह आप उठे, किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चीज़ों को देखा है. मतलब एक सही तरीका जो होता है ना स्टूडेंट का, उस तरह से. और मैं नॉट 100%, 200% एश्योर हूँ कि जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, आप 100% उसको आप निभाओगे. और हो सकता है मेडिकल वाली चीज़ भी उसमें काम आए आपको. जब आप IAS बनेंगे तो हो सकता है कुछ एरिया आपको डिवाइड ऐसा मिल जाए जहाँ पे आप उसको सर्व करें. यस सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. एक बार गले लग जाओ यार. यस सर.